हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एनएसओ के चैप्टर 2 दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक के बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेफर टू द गिवन पैराग्राफ वेयर फ्यू वर्ड्स हैव बीन इटैलिसाइज्ड। Wool is obtained from fleece of certain animals. Yes, ये statement correct है. Wool is obtained from fleece of certain animals. Example, sheep, goat, camel, yak, etc. Second statement, Kashmira is obtained from yak and is common in Kashmir. Yes, ये statement भी correct है. And also, Kashmira is obtained from goats in Gobi Desert and is common in northern China into Mongolia. Third statement, alpaca and visuna are members of camel family that yield extremely fine and expensive wool. Yes, ये statement भी correct है. Then fourth, Shahatos is obtained from Angora goats. ये statement incorrect है. Sahatosh is obtained from Tibetan antelopes and also known as king of fine wool. It is considered to be the world's warmest wool. Then select the correct option regarding this. पहला स्टेटमेंट, याक शुड नॉट बी रिप्लेस्ड एज इट इज़ करेक्टली मैंशनड वेयर एज कश्मीर शुड बी रिप्लेस्ड विथ तिब्बत, ये गलत है. एनागोरा गोट शुड बी रिप्लेस्ड विथ तिब्बतियन एंटीलोप्स, ये स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 12, Which of the following statement are correct regarding sericulture? पहले तो sericulture किसे बोलते हैं? The rearing of silkworm to obtain silk is called as sericulture. अभी देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है. फर्स्ट ऑप्शन, After hatching, the silkworm feed on freshly chopped mango leaves. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमें पता है silkworm feed on freshly chopped mulberry leaves. Then second option, the silk fiber is obtained from the cocoon by a process known as reeling. ये स्टेटमेंट ट्रू है. Statement 3, if an adult is allowed to emerge out from the cocoon become useless for silk production. ये statement भी true है. ये sentence में ये बोला गया है कि अगर कुकुन को तोड़ के सिल्क वॉर्म बाहर आ जाता है तब वो सिल्क प्रॉपर वे में और नहीं निकल पाता और वो कुछ काम का नहीं रहता. इसीलिए जब सिल्कवॉर्म कोकून के अंदर रहता है हम तभी कोकून को प्रोसेस करते हैं बाय स्टीमिंग और बाय पुटिंग इट इन वार्म वाटर. तो सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 13, द फीमेल सिल्क डैक्स ले एग्स. द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स. पहला आई में होगा मॉथ. देन व्हेन एन एग हैचेस अ टाइनी कैटरपिलर कॉल्ड सिल्क वॉर्म और लार्वा क्रॉल्स आउट. तो डबल आई में होगा लार्वा. इट फीड्स ऑन द लीव्स एंड ग्रोज. When it is ready to enter the next stage in its life cycle, it secretes a fiber made of protein, which hardens on exposure to air. This is the silk fiber. It covers itself completely with this fiber to form a डैश दैट इज cocoon. आई भी में होगा cocoon. एट दिस स्टेज द लार्वा इज कॉल्ड एज डैश. इट इज कॉल्ड एज pupa, which grows and changes inside the covering and a few weeks later comes out as an adult. तो अभी हम लोगों ने सारे फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए हैं. तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14,
Read the given statement and select the correct option. Statement 1. Woolen cloths lock in the heat and provide us warmth in cold weather. ये statement बिल्कुल सही है. Statement 2. Woolen fibers trap air in the pockets formed between the individual fibers. ये statement भी correct है. And statement 2 is the correct explanation for statement 1. तो option A is the correct answer. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 15. रेफर टू द गिवन फिगर. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिल्कवॉर्म के लाइफ साइकिल को एक साइक्लिक ऑर्डर में दिखाया गया है. पी में देखिए एग है, उसके बाद क्यू में कैटरपिलर है, आर में कोकून है, देन एक फीमेल सिल्क मॉथ है. तो यहाँ पे बोला गया है एट विच लेबल्ड स्टेज मोल्टिंग अकर्स. मोल्टिंग का मतलब क्या है? मोल्टिंग इज ए प्रोसेस बाय विच द सिल्कवर्म ceased its feeding, became immobile and prepared themselves for shedding their old skin to accommodate the first growth. इसका मतलब है जबकि सिल्कवर्म अपना खाना बंद कर लेता है और अपने नेक्स्ट स्टेज को जाने के लिए एक जगह पे स्टेबल होके रह जाता है और कुकुन बनने के लिए तैयारी करता है. तो Q इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 16. स्वाति टेक्स एक्स फाइबर एंड बर्न इट. शी ऑब्जर्व फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द फैब्रिक. उसने एक क्लॉथ मटेरियल लिया और उसे बर्न किया और क्या क्या प्रॉपर्टीज देखा. इट बर्न्स बट डज नॉट मेल्ट. पहला प्रॉपर्टी, वो जल गया बट मेल्ट प्रॉपरली नहीं हुआ. देन इट सिंक्स फ्रॉम द फ्लेम. वो सिंक हो गया मतलब छोटा बन गया. इट लीव्स रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग विच इज़ ब्लैक, hollow, irregular bed that can be easily crushed to a gritty black powder. वो जलने के बाद हम उसे एक पाउडरी लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट इज़ सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग. तो यहाँ पे नीचे कुछ फाइबर्स के नाम दिए गए हैं. इनमें से कौन सा फाइबर ऐसा है जो कि ये सारे प्रॉपर्टी शो करता है? ये होगा सिल्क फाइबर. ये सारे प्रॉपर्टी सिल्क फाइबर के दिए गए हैं. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 17. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज द ट्रू एंड द फॉल्स स्टेटमेंट. ट्रू फॉल्स हमें करना है. पहला स्टेटमेंट, सिंथेटिक फाइबर्स आर द फाइबर्स दैट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स. येस, इट इज़ ट्रू. देन सेकेंड स्टेटमेंट, एनागोरा गोट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनागोरा रेबिट्स. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमें पता है एनागोरा ऊल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनागोरा गोट. देन थर्ड स्टेटमेंट, the wool obtained from पटनवाड़ी breed of goat is used for hosieries. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पटनवाड़ी ब्रीड ऑफ शिप होगा यहाँ पे गोट की जगह पे. तो थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स. देन फोर्थ स्टेटमेंट, सिल्क इज़ द वीकेस्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर्स. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है. सिल्क इज़ द क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स और वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. तो ऑप्शन आई भी ऑल्सो इनकरेक्ट. तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिन्हें कि हम अप्रोप्रिएट ब्लैंक्स में फिल करेंगे. क्वेश्चन नंबर ए, द प्लांट फाइबर आर मेड अप ऑफ डैश which is a structural material in the plant world. Plant fibers are made up of cellulose, which is a main constituent of the plant cell wall. तो फर्स्ट ए में होगा cellulose. B, the process of taking out threads from the cocoon to use as silk is called as reeling. इस प्रोसेस को reeling बोल के बोला जाता है. Third, the sheared hair of sheep
is moved through tubes filled with soapy water to remove dust, dirt and grease. This is known as soaring. फाइबर से डस्ट, ग्रीस और डर्ट पार्टिकल्स को सोपी वाटर में क्लीन करने के प्रोसेस को हम सोरिंग बोल के बोलते हैं. देन ऑप्शन डी, मोहेरा स्पून फ्रॉम द फ्लीस ऑफ एनागोरा डैश इज एक्सट्रीमली इन लाइट वेट. एनागोरा गोट्स. तो ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर होगा गोट. इस हिसाब से हम अगर देखेंगे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. प्रोटीन क्यों नहीं होगा? मोस्टली एनिमल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड प्लांट फाइबर आर ऑफ सेलुलोज. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 19. रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पी, क्यू, आर एंड एस. तो देखते हैं ऑप्शंस. फर्स्ट दिया गया है द सोर्स ऑर्गेनिज्म इज किल्ड इन द फाइबर ऑब्टेनिंग प्रोसेस. सोर्स ऑर्गेनिज्म को मार डाला जाता है फॉर ऑब्टेनिंग द फाइबर दैट हैपन्स इन सिल्कवॉर्म. देन आगे देखते हैं उसके राइट साइड के एरो में लिखा गया है येस. उसके बाद बॉक्स में लिखा गया है बर्निंग फाइबर स्मेल्स लाइक बर्निंग पेपर. एक तरफ आर ऑप्शन को जाके नो लिखा गया है और एक तरफ एफ एस ऑप्शन की ओर जाके यस लिखा गया है. तो जहाँ पे यस लिखा गया है रेयन इज़ ए सिंथेटिक फाइबर बट स्मेल्स लाइक बर्निंग पेपर. तो एस होगा रेयन. जिस तरफ नो लिखा गया है नाइलॉन इज़ ऑल्सो ए सिंथेटिक फाइबर बट डू नॉट स्मेल लाइक बर्निंग पेपर. उसके बाद फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं. द सोर्स ऑर्गेनिज्म इज किल्ड इन द फाइबर फॉर ऑब्टेनिंग प्रोसेस. नीचे एरो को देखिए नो लिखा गया है नहीं. बर्निंग फाइबर स्मेल्स लाइक बर्निंग हेयर. एक तरफ नो गया है क्यू की तरफ, एक तरफ येस गया है पी की तरफ. तो जो नो की तरफ गया है कॉटन एंड नाइलॉन डू नॉट स्मेल लाइक बर्निंग हेयर. तो क्यू में होगा कॉटन एंड नाइलॉन डू नॉट स्मेल लाइक बर्निंग हेयर. और जो बर्न करने से बर्निंग हेयर की तरह स्मेल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वुलन फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीश ऑफ सीप हैंस स्मेल लाइक बर्निंग हेयर. तो पी की तरफ होगा वुलन फाइबर्स. अभी ऑप्शंस देख लेते हैं. P is the strongest natural fiber. Q is made up of protein while R is made up of cellulose. Salivary gland of an insect secrete S which hardens on exposure to air. R is chiefly made up of protein fibrin and sericin. इस हिसाब से हम अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. जहाँ पे आर के बारे में बोला गया है और हम लोगों ने देखा था आर में क्या है नाइलॉन इज़ ऑल्सो ए सिंथेटिक फाइबर दैट इज़ चीफली मेड अप ऑफ प्रोटीन फाइब्रिन एंड सेरिसिन. तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. Following is a random sequence of steps involved in the processing of wool. Arrange these steps in correct sequence and select the correct option. यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि रैंडम ऑर्डर में दिए गए हैं. हमें इन्हें सीक्वेंस में लिखना है. तो पहला प्रोसेस क्या होगा? पहला प्रोसेस होगा ट्रिपल आई दैट इज शेयरिंग. द प्रोसेस बाय विच द वुलन फ्लीस ऑफ शीप इज कट ऑफ. तो फर्स्ट आ गया शेयरिंग. देन होगा सिंगल आई सोरिंग to remove grease, dust and dirt particles from the wool they are cleaned. Then I double I sorting, the process of separating fleece और हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर. अलग अलग टेक्सचर के हेयर को अलग अलग किया जाता है. नेक्स्ट प्रोसेस
IV, removal of birds or small fibers present in the hair and then dried. अगर छोटे छोटे बर्ड्स पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम अलग कर लेते हैं और उन्हें सुखाया जाता है. नेक्स्ट प्रोसेस कार्डिंग. कार्डिंग इज ब्रशिंग ऑफ वूल फाइबर्स टू ऑर्गेनाइज देम. कार्डिंग प्रोसेस में ब्रशिंग किया जाता है ऑफ वूल फाइबर्स. देन आया डाइंग. Dyeing means adding color to the fibers. Then आया VII spinning, a process of making yarn from the fibers. Yarns mean धागे जो कि चरखे से किया जाता है और बाय हैंड ऑल्सो. आजकल उसके लिए मशीन्स आ चुके हैं. उसके बाद VI, yarn is the thread in the form of a loosely twisted collection of fibers. They are used for knitting and weaving. yarn से हम क्लॉथ मटेरियल बनाते हैं. उसके बाद आया VII, that is weaving. weaving का मतलब क्या है? जो क्लॉथ मटेरियल 2 सेट्स ऑफ यार्न को लेके बनाया जाता है उस प्रोसेस को हम वीविंग बोलते हैं. जनरली हमारा क्लॉथ मटेरियल 2 सेट्स ऑफ यार्न को लेके बनाया जाता है. उसके बाद लास्ट IX, फैब्रिक. फैब्रिक इज द क्लॉथ और अदर मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग और निटिंग. तो हम अगर सीक्वेंस को देखेंगे तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. तो हम लोगों ने बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं. मैं इनके नोट्स आपको अभी प्रोवाइड कर रही हूँ. जिसको अगर कुछ भी डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर.